ایک بار شیطان جو ہے سمندر کے اوپر اس نے اپنا دربار لگایا اور وہ اپنے چیلوں سے ان کی برائیوں کی، غلط کاموں کی کارکردگی لے رہا تھا کہ بتاؤ تم نے آج کیا کیا۔ اس کا ہر چیلا جو ہے اس کو اپنی کارکردگی بتاتا، کوئی کہتا بتاتا میں نے جھوٹ بلوایا، کوئی کہتا میں نے ڈاکہ لگوایا، کوئی کہتا میں نے اس کو شراب میں مبتلا کر دیا۔ سب لوگ اپنی اپنی کارکردگی بتا رہے تھے۔ ایک اس کا چیلا جو ہے وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اے میرے سردار، میں نے ایک طالب علم دین کو مدرسے جانے سے روک دیا۔ میرے بچوں ذرا غور سے سنیے گا، دل چاہتا ہے نا یار مدرسے سے چھٹی کر لیں، مزہ نہیں آ رہا، یار کہیں اور چلتے ہیں۔ یہ سارے کام شیطان کے ہیں۔ شیطان کے چیلے نے جب اپنی یہ رپورٹ دی تو شیطان کھڑا ہوا اور اس کو سینے سے لگا دیا۔ اس کے چیلے کہتے ہیں ہم نے اتنے بڑے بڑے جرم کروائے، کوئی شاباش نہیں، اس کی اتنی بڑی شاباش۔ شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے بات سمجھ نہیں آئی، چلو میں تمہیں لے کے جاتا ہوں۔ اب شیطان کیا کیا، اس نے انسانی صورت میں زمین پر آیا، تہجد کا وقت تھا، ایک مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ تہجد کے وقت ایک عابد کہتے ہیں عبادت گزار، علم نہیں ہو، عابد بے علم، جس کے پاس علم نہیں ہے عبادتیں بہت کرتا ہے، تو وہ آیا تہجد پڑھنے۔ شیطان نے اسے روکا، کہا حضرت ایک سوال کرنا ہے آپ سے، کہ جلدی پوچھو مجھے تہجد پڑھنی ہے۔ کہا حضرت بس جواب دے دیں پھر پڑھتے رہیے گا۔ کہا اچھا سوال کرو۔ شیطان نے اس کو ایک شیشی دکھائی، کہا حضرت یہ بتائیے کہ کیا اس شیشی سے اللہ کریم اس دنیا کو گزار سکتا ہے؟ عابد تھا نا، عالم تو تھا نہیں، کتابیں تو پڑھی نہیں تھی، علم تو حاصل نہیں کیا تھا۔ کہتا ہے اتنی چھوٹی سی شیشی سے اتنی بڑی دنیا کیسے نکلے گی؟ شیطان کہتا ہے بس ٹھیک، اب آپ جائیے پڑھیے نماز۔ اس کا مطلب کیا ہوا پتہ ہے؟ اس شخص نے اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا نا، تو ایمان تو چلا گیا، کفر ہو گیا۔ اب کب پڑھتے رہو جتنی نمازیں پڑھنے کا، جائیے حضرت پڑھیے تہجد۔ اب تھوڑی دیر بعد ایک عالم دین آیا، وہ تہجد پڑھنے نہیں آئے، فجر پڑھنے آیا، ٹھیک ہے؟ اب فجر پڑھنے جب وہ آئے تو شیطان نے کہا حضرت آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ تو کہا کیجئے، لیکن جلدی کیجئے، نماز پڑھنے جانا ہے۔ کہا حضرت یہ بتائیں یہ جو شیشی ہے کیا اللہ کریم اس شیشی سے اس دنیا کو گزار سکتا ہے؟ وہ عالم دین تھے، علم تھا۔ کہتے ہیں مردود تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، میرا رب کریم سوئی کے ناکے کے اندر سے کروڑوں کائنات چاہے تو گزار سکتا ہے۔ اب شیطان اپنے چیلوں سے کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ فرق ہے علم اور بغیر علم کا۔ اس بندے نے اپنے علم کی وجہ سے اپنا ایمان بچا لیا، اس کے پاس علم نہیں تھا، حالانکہ بڑی عبادتیں تھیں، اس کا ایمان ہی اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو مدرسے نہ جانے دینا، عالم نہ بننے دینا، کسی کو علم نہ سیکھنے دینا، یہ شیطان کا اور اس کے چیلوں کا کام ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات سمجھنے کی ہے، شیطان پر سب سے زیادہ جو بھاری ہوتا ہے وہ عالم دین ہوتا ہے۔ علماء کی شان سنو، قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں، جزی نیس، یعنی اللہ کے بندوں میں وہی کرتے ہیں اللہ سے جو علماء ہیں، کیونکہ ان کو علم ہوتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار آج کل کے عالم میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ معاذ اللہ، لوگ علماء کو وہ اسٹیٹس، وہ مقام اور ان کا دل میں وہ عزت نہیں کرتے، حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ مقابلہ ہی نہیں ہے، کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ دنیا کا کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، دنیا کا کتنا ہی بڑا نامور آدمی کیوں نہ ہو، اگر علم دین نہیں ہے اور سامنے ایک عالم دین کھڑا ہو جائے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، کیونکہ میں نہیں، رب فرما رہا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم کہو، یعنی تم فرماؤ، کیا برابر ہے وہ لوگ کہ جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ کوئی برابری نہیں ہے، علماء کی شان ورا الورا ہے۔ اب آؤ میرے آقا کی کچھ حدیثیں سنتے جاؤ، ایمان تازہ کرو، حسرت دل میں پیدا کرنی چاہیے کہ کاش میں بھی عالم بن جاؤں، کاش میں بھی اس فضیلت کا حامل بن جاؤں۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک کے سامنے دو لوگوں کا ذکر ہوا، ایک عابد کا، دوسرا عالم کا۔ اچھا غیر عابد کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، جو نمازیں نہیں پڑھتا، گناہ گار ہے، اس کا بات نہیں ہو رہی۔ ایک عبادت گزار شخص جس کو معاشرے میں بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، مذہبی حلیہ ہے، اچھی بات ہے۔ عابد اور عالم، ان دونوں کا ذکر ہوا نبی پاک کے سامنے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ آقا فرماتے ہیں عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے کمتر پر۔
अल्लाह के हबीब तू कुजा मन कुजा, हमारा हम कहां और वो कहां। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि आबिद पर आलिम ऐसी फजीलत रखता है जैसी मेरी फजीलत तुम्हारे अदना पर है। इससे अंदाजा कीजिए कि उसका कंपैरिजन ही नहीं है, उसका मकाम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में किस कदर बुलंद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन उलमा की दवातों की सियाही, उलमा जो लिखते हैं ना, अब तो खैर बॉल पेन आ गए, मार्कर आ गए, पहले क्या था, सियाही से दवात से लिखा जाता था। अल्लाह अल्लाह, ए उलमा हम आपके कदमों की खाक के बराबर नहीं हैं। जरा मैं आपसे एक सवाल करूं कि सबसे बड़ी कुर्बानी दीन के लिए कौन देता? जो शहीद हो जाए। अपनी जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना, शहीद का मर्तबा कितना बड़ा है। मगर सुनो, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, हदीस का मजमून है कि क़यामत के दिन उलमा के दवातों की सियाही और सामने शहीदों का खून तोला जाएगा। एक तरफ उलमा की जो जिससे वो लिखते हैं वो सियाही होगी, और दूसरी तरफ शहीदों का लहू तोला जाएगा। आका फरमाते वो सियाही, वो रोशनाई उनकी दवातों की शहीदों के खून पर गालिब आ जाएगी, उसका वजन ज्यादा हो जाएगा। इल्म दीन और उसको फैलाने का काम, उसके लिए कोशिश करना, ये अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में कितना मकबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी एक रिवायत है, सुनो। इह्या उलूम में मरफूअन इस रिवायत को जिक्र किया गया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन आबिदों और मुजाहिदों को हुक्म देगा कि जन्नत में जाओ, इबादत करने वालों को और मुजाहिदीन को। तो उलमा भी होंगे, कहेंगे या अल्लाह हमने तो इनको सारा इल्म बताया, हमारे कहने पे इन्होंने इबादत की, उन्होंने जिहाद किया, ये तो जन्नत में चले गए। आए हाय, सुनो रब उलमा से क्या फरमाएगा। रब फरमाएगा मेरे नजदीक तुम बाज फरिश्तों की मानिंद हो, शफात करो, तुम्हारी शफात कबूल हो। बस उलमा पहले लोगों की शफात करेंगे, फिर खुद जन्नत में जाएंगे। यानी आम नेक लोग जन्नत में जाएंगे, उलमा को रोक लिया जाएगा, रुकिए और लोगों की शफात करें, उन्हें भी जन्नत में साथ ले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आता है जो शख्स एक बाब इल्म का दूसरों को सिखाने के लिए सीखे, उसको 70 सिद्दीकों का अजर दिया जाएगा। कैसी कैसी फजीलत है, सुनते जाए तो बंदे का जी चाहता है सारे काम छोड़ो भाई, पहले तालिब इल्म दीन बन जाओ, आलिम बन जाओ। ऐसी फजीलतें, मगर आज किसको पड़ी इल्म सीखने की? आज टाइम किसके पास है इल्म दीन की तरफ आने का? ना उलमा की इज्जत करते हैं, ना तालिब इल्म दीन को कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ना खुद इल्म सीखने के लिए तैयार है। सिर्फ ये जामिअतुल मदीना वालों पर इल्म सीखना जरूरी, ये फजीलतें तो सबके लिए है ना। और आगे मैं बताऊंगा कि कुछ उलूम ऐसे जिसका सीखना फर्ज है, मगर उसके लिए भी हम किसी के पास टाइम नहीं है। अल्लाह अकबर। सुनो, आलिम जो बन जाए ना, उसका मर्तबा पता है कैसा है? इमाम गजाली फरमाते हैं कि आलिम को एक नजर देखना साल भर की नमाज और रोजे से बेहतर है। आलिम को सिर्फ देखने का ये मकाम है, उस आलिम का अपना मकाम क्या होगा, उसकी अपनी नेकियों का आलम क्या होगा कि जिसको देखने पर 1 साल के रोजे और इबादत का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम हमें उलमाए किराम की बरकतें नसीब फरमाए। और ये पता है अल्लाह की तरफ से अता होती है। लोग कहते हैं यार इस पर अल्लाह ने बड़ा करम किया, बड़ा पैसा आ गया इसके पास, इस पर अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, बड़ी गाड़ी ले ली इसने, हाँ इसकी तरक्की हो गई, अपने ऑफिस के अंदर तनख्वाह बढ़ गई। यकीनन अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ही अता फरमाने वाला है। मगर आपको बताऊं, अल्लाह जब किसी से भलाई का इरादा फरमाता है ना तो क्या होता है। सुनो, बुखारी और तिर्मिजी में ये हदीस मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन, अल्लाह ताला जिससे खैर का इरादा फरमाता है ना, युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला उसे दीन की समझ अता कर देता है। दीन की समझ बूझ जिसे अता हो जाए, अल्लाह ने उससे गोया भलाई का इरादा फरमा लिया है। अब उसके दिन फिर गए हैं, इंशाअल्लाह वो तरक्की करेगा और आगे बढ़ जाएगा। सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं फलां बड़े खानदान का वारिस है। अरे भाई बहुत बड़ी पार्टी है, इसके वालिद साहब की बड़ी मिलें हैं, ये तो फलां कंपनी का, फलां खानदान का, फलां रईस का वारिस है। आओ आज मैं बताता हूं अंबिया के वारिस कौन है, इससे बड़ी कोई विरासत है? सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जो शख्स तलब इल्म में किसी एक राह चले, अल्लाह उसे जन्नत की राहों में से एक राह चला दे। ऐ जामिअतुल मदीना आने वालों, हिम्मत ना हारना, तुम्हारी ये राहें हैं, ये जन्नत की राहें हैं। और फरमाया बेशक फरिश्ते अपने बाजू तालिबे इल्म की रिजामंदी के वास्ते बिछाते हैं, और बेशक आलिम के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं सब ज़मीन वाले और सब आसमान वाले, यहाँ तक कि मछलियां पानी में। और बेशक फजल आलिम का आबिद पर ऐसा है जैसे 14वीं रात के चांद की बुजुर्गी सब सितारों पर। और बेशक उलमा वारिस अंबिया के हैं, और बेशक पैगंबरों ने दिरहम और दीनार की मीरास नहीं छोड़ी, बल्कि इल्म को मीरास छोड़ा है। बस जो इल्म हासिल करे उसने बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। अंबिया की विरासत पैसे नहीं होते,
दिरहम और दीनार नहीं, अंबिया इल्म छोड़ते हैं, इल्म छोड़ कर जाते हैं और उस मीरास को उलमा और तालिब इल्म दीन पा लेते हैं। इसलिए उलमा को वारिसुल अंबिया कहा गया। तो अब मेरे बीच इस्लामी भाइयों, चंद बातें मैंने इसलिए कुरान और हदीस से अर्ज की कि ये शौक पैदा हो, उलमा की सोहबत में बैठने का जज्बा पैदा हो। यार मैं भी तो आलिम दीन बन सकता हूं। ये रोजाना चांद पे थोड़ी जाते हैं पढ़ने के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, खाते पीते सोते नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बड़ा इजी हो गया है। सच्ची बात बताऊं आपको, 1400 सालों में इल्म दीन पढ़ना इतना आसान नहीं था जितना इस दौर में आसान हो गया है। हाँ, बुराइयां जरूर बढ़ गई, मगर टेक्नोलॉजी की वजह से, और माशाल्लाह बहुत सारी तंजीमों ने ये काम किया। दावत इस्लामी आपके सामने, पहले देखिए लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफर करते थे पढ़ने के लिए, उस्ताद ही नहीं होता था, एक दूसरे मदरसे में जाना पड़ता था। फिर कराची में भी, पूरे कराची में एक मदरसा होता था। अब माशाल्लाह गली गली, मोहल्ले मोहल्ले मदरसतुल मदीना, जामियतुल मदीना खुल गए। फिर उसके बाद दावत इस्लामी ने तो और आसान कर दिया, इंटरनेट का दौर है, ऑनलाइन दरस निज़ामी शुरू करा दिया। आप रात को 12 बजे फारिग होते हैं अपने कारोबार से, रोजाना रात 12 बजे पढ़ना शुरू कर दें। 24 आवर्स में कभी भी इल्म दीन पढ़ना है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ सकते हैं। यानी इतना ईजी हो गया। किताबें पहले खरीदनी पड़ती थी, अब डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने इल्म दीन सीखना आसान जरूर किया, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया जमाना, लोग इल्म से दूर हो गए, शौक खत्म हो गया, जज्बा खत्म हो गया। वो जो तड़प थी, दूसरे मुल्क सफर करके ऊंटों घोड़ों पे लोग आलिम बनने चले जाते थे। आज हमारे मोहल्ले में इल्म दीन सिखाने वाला है, मगर हमारे पास टाइम नहीं। मदनी चैनल रिमोट से ऑन करें तो इल्म दीन सीखने को मिलता है, उसको देखने का टाइम नहीं। मोबाइल पर घंटों जनाब सोशल मीडिया पर टाइम गुजारने का वक्त है। इसी मोबाइल से मैं रोज इल्म दीन सीख सकता हूं, कोई किताब पढ़ सकता हूं, तफसीर कुरान पढ़ सकता हूं, उसका टाइम नहीं। हालांकि इल्म पहुंच गया फिंगर टिप्स पर, इल्म आ गया हमारी दस्तरस में, मगर शौक दिल से खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। आज अल्लाह करे कि वो तड़प और शौक नसीब हो जाए तो इल्म सीखना तो बड़ा आसान हो गया। बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब बात करते हैं उलमा की मजलिस में बैठने की फजीलत। मुबारक हो जो माशाल्लाह आज वक्त निकाल कर आए हैं, इल्म दीन की इस महफिल में आए हैं। ये आपके लम्हात जाया नहीं हो रहे। हाँ, बड़ी बड़ी इबादतों से बड़ा सवाब मिल रहा है। सुनो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला की एक हदीस में है कि आलिम की मजलिस में हाजिर होना 1000 रकअत नमाज, 1000 बीमारों की इयादत और 1000 जनाजों में हाजिर होने से बेहतर है। 1000 जनाजे कब पढ़ेंगे भाई? 1000 मरीजों की इयादत है। अब जरा सोचो, उस महफिल में हाजिर होना। अब नबी पाक से एक सवाल बड़ा प्यारा किसी ने किया, कहा हुजूर ये इरशाद फरमाएं कि किरात कुरान से भी अफजल है। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं हम कुरान की तिलावत करेंगे, इल्म दीन की मजलिस में नहीं आते। नबी पाक से सवाल किया, हुजूर नमाज, जनाजा और मरीजों की इयादत और 1000 रकत से तो अफजल है, क्या तिलावत कुरान से भी अफजल है? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, क्या इल्म की मजलिस में हाजिर, सवाल किया गया कि क्या इल्म की मजलिस में हाजिर होना किरात से भी अफजल है? फरमाया, क्या कुरान बगैर इल्म के नफा बख्श है? इल्म के बगैर क्या कुरान फायदा देगा? तो इल्म होगा तो कुरान भी इसकी बरकतें अता होगी, कुरान भी अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा, कुरान को पढ़ने के आदाब नसीब हो जाएंगे। तो पता चला खुश नसीब होते हैं वो लोग जो इल्म दीन की मजलिस में जाते हैं, उलमा की मजलिस में जाते हैं और शौक के साथ बैठकर कुछ सीख कर आने की कोशिश करते हैं। सुभान अल्लाह। बहरहाल फजाइल तो बहुत सारे हो गए। अब आते हैं उन लोगों की तरफ, जैसे माशाल्लाह यहाँ जामियतुल मदीना बना, कुछ लोगों ने यकीनन ताउन किया होगा, मगर ताउन करते रहना चाहिए। सच्ची बात पता क्या है कि ये मेरे और आपके पैसों का नसीब है जो उलमा पे खर्च हो जाए, जो तलबा पे खर्च हो जाए। हम अगर खुद आलिम नहीं बन सके तो किसी को आलिम बनने में मददगार तो बन सकते हैं कि चलो ये उलमा हैं, क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हमने हदीस सुनी है कि इनको कहा जाएगा रुकिए और लोगों की शफाअत करो और उन्हें जन्नत में ले जाओ। क्या पता क़यामत के दिन कोई आलिम दीन हमारा हाथ पकड़ ले, आपने मदद की थी, मैं आलिम बन गया, चलिए जन्नत में साथ चलते हैं। मैं आपको हदीस सुनाता हूं, मेरे आका फरमाते हैं अद्दालु अलल खैरि कफाइलिही, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं भलाई पर दलालत यानी भलाई पर रहनुमाई करने वाला जो है भलाई करने वाले जैसा है, यानी भलाई करने वाले की तरह है। आप आलिम नहीं बन सके, इंशाअल्लाह उलमा को सपोर्ट करोगे तो आपको भी सवाब मिलेगा। और रिवायतों में आता है ना, मुजाहिद जो कि जिहाद करता है और मुजाहिद को सामान देने वाला दोनों बराबर हैं, क्योंकि वो जिहाद कर रहा है, ये पीछे सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई दीन का काम कर रहा है, आप पीछे सपोर्ट करने वाले बन जाएंगे। इंशाअल्लाह मेरे रब की रहमत से उम्मीद है आपको भी इसका अजर मिलेगा। अच्छा, यहां पर एक और बात अर्ज करता चलूं कि हमें ये बात समझनी है कि इल्म दीन हमें भी सीखना है। हाँ, हम जो है जनाब ठीक है, मौलाना साहब ने कह दिया मैं जामियतुल मदीना में एक तालिब इल्म को स्पॉन्सर कर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ठीक है,
जितना कोर्स ये करते हैं ये सब पर सीखना फर्ज नहीं है, मगर एक हद तक इल्म सीखना ये हम सब पर फर्ज है। वो नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। हदीस पाक बड़ी मशहूर है, सुनी होगी आपने। आका फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। स्कूलों में भी मैंने देखा था ये लिखी हुई होती थी हदीस। हालांकि उलमा फरमाते हैं इससे दुनियावी इल्म मुराद नहीं है, स्कूल कॉलेज वाला इल्म मुराद नहीं है, बल्कि सबसे पहले इससे जरूरी दीनी इल्म मुराद है। इस हदीस से कौन सा इल्म सीखना जरूरी है? अब जरा मैं चंद चीजें बताता हूं, गौर से सुन लें, ताकि एटलीस्ट कम से कम जो इल्म सीखना फर्ज है वो तुम सारे पूरा कर लेना। मदरी के नाज़रीन भी गौर से सुने। फरमाया कि सबसे पहले बुनियादी अकायद सीखना फर्ज है। अल्लाह के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, नबियों के बारे में, रसूल पाक के बारे में, फरिश्तों के बारे में, कयामत के बारे में, जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, जो बुनियादी हमारे अकायद हैं उसके बारे में हमारा इल्म सीखना, अकीदा सीखना फर्ज है। बहुत सौ को नहीं पता होता। आगे चलते हैं। फरमाया उसके बाद नमाज के फराइज, उसकी शराइत, उसके मुफसिदात। फिर रमजान की जब तशरीफ आवरी होगी तो अब हम पर रोजे फर्ज हो गए, तो रोजों के जरूरी मसाइल सीखना फर्ज। जिस पर ज़कात फर्ज हो उस पर ज़कात के जरूरी मसाइल सीखना फर्ज है। जिस पर हज फर्ज हो जाएगा उस पर हज के मसाइल सीखना फर्ज हो जाएंगे। निकाह करना चाहता है तो निकाह के मसाइल सीखना जरूरी। तिजारत करना चाहता है तो ताजिर को खरीदो फरोख्त के मसाइल सीखना जरूरी। नौकरी करने वाले को नौकरी करने के मसाइल सीखना जरूरी हो जाएंगे। जब आप किसी को नौकर रखेंगे, अजीर रखेंगे, तो अब नौकर रखना कैसे है, उसकी उजरत कैसे देनी है, उसके शरई मसाइल क्या है, वो सीखना जरूरी हो जाएंगे। तो इसी तरह मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात को समझिए कि इस हर बंदे की मौजूदा हालत के मुताबिक उस पर अपने मसले सीखना फर्ज ऐन है। इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें हैं जिसको बातनी बीमारियां कहते हैं, बातनी बुराइयां कहते हैं। मिसाल के तौर पे आजी, इखलास, ये तो बड़ी अच्छी नेमत है, इसके बारे में मालूम हो। तकब्बुर किसको कहते हैं, रियाकारी किसको कहते हैं, गीबत किसको कहते हैं, पता ही नहीं होगा तो बचोगे कैसे? एक फहरिस्त है पूरी जो उलूम सीखना जरूरी है। मगर यहां हमसे पूछो भाई आजकल दुनिया में हो क्या रहा है, कौन सी टीम कौन सा मैच खेल रही है, कौन से मुल्क का वजीर आजम तब्दील हो गया है, कौन सा जनाब मामला किधर है। रोजाना कुछ लोग तो अजीब लोग हैं, रोजाना डॉलर के रेट देख रहे होंगे हैं। $1 खरीदना नहीं, डॉलर का रेट रोज पता होगा। सोने का 1 तोला खरीदना नहीं, सोने का रेट रोज मालूम। खामा खाई की मालूम है। सोशल मीडिया पे घंटों बहस, टॉक शो देख रहे तो ऐसे देख रहे जैसे मुल्क का हाल यही चला रहे हैं। तब्दीली आने वाली है, बड़ा मामला चल रहा है, कोई नई कहानी हो रही है, सियासत में कोई बड़ा मामला आ रहा है, इसी चक्कर में जिंदगी गुजर गई, नमाज पढ़ने आती नहीं। अच्छा फिर सवाल ऐसे करेंगे कि जनाब अच्छा फिर चले उलमा को आजमाने, खुद तो कुछ आता नहीं, चले उलमा को आजमाने। ये कभी ना करना। आलिम दीन की बड़ी अहमियत है अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक। मैंने आपको अहादीस के जरिए बताया और आगे मैं इंशाअल्लाह उलमा के साथ बर्ताव कैसा होना चाहिए ये भी बयान करूंगा। मगर लोग खुद कुछ नहीं सीखते और उलमा का इम्तिहान लेना शुरू कर देते हैं। एक बात, एक शख्स इमाम आजम अबू हनीफा की महफिल में गया और कहता है हुजूर जरा ये बताइए कि हजरत मूसा की नानी का नाम क्या है? तो इमाम आजम अबू हनीफा, सुभान अल्लाह, आपका तो मकाम है, आपने फरमाया बेटा वजू के 4 फर्ज हैं। वो अजीब गरीब कैफियत में आ गया कि ये आप कैसे जवाब दे रहे हैं? कमाल का जवाब दिया, अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। आपने फरमाया बेटा मरने के बाद तो उससे ये नहीं पूछा जाएगा मूसा की नानी का नाम क्या था अलैहिस्सलाम, तो उससे नमाज के बारे में सवाल होगा। मेरा बेटा पहले नमाज सीख ले, वजू के 4 फर्ज सीख ले, फिर उसके बाद गुस्ल है, नमाज है, पाकी है, तिलावत है, जो मेन चीजें वो तो सीखो। इधर यही हाल है, बहस ऐसे ही करेंगे कि जनाब उलमा ऐसे होने चाहिए, मदरसे ऐसे होने चाहिए, जनाब दीन का काम ऐसे होना चाहिए। सवाल करो भाई नमाज पढ़ना आती है? हाँ आती तो है, पढ़ता तो हूं, कैसे पढ़ता हूं, किधर सीखी, ये किसी को नहीं पता। एक अजीब सी बात बताऊं, अगर एक सवाल कर लूं, बड़ी तादाद में लोग बाहर भी बैठे हैं, हाथ नहीं उठाइएगा, वैसे सवाल है कितने ऐसे लोग हैं जिनको नमाज जिन्होंने सीख कर पढ़ी हो? नमाज कहां सीखी है आपने? क्वेश्चन है, शायद जवाब नहीं होगा, यार सीखी तो नहीं, हमने तो देख कर पढ़ी है। हाँ छोटे थे तो अब्बू को देखा था, मस्जिद में आए तो बराबर में जिसको वजू करते देखा वैसे ही वजू कर रहे हैं। आज तक अंगूठे चूम रहे लोग वजू में, क्योंकि उसने चूमते वही देखा था ना लोगों को कि शायद अंगूठे भी चूमने होते हैं वजू में, अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे होते हैं, अजीब अजीब स्टाइल लोगों के वजू में। किधर सीखे भाई? वो बराबर में वजू अंकल करते थे, उन्हीं को देख के हमने ये वाला वजू सीख लिया। अच्छा नमाज किधर सीखी? तो जैसे लोग सफ में नमाज पढ़ते हैं ऐसे हम नमाज पढ़ते हैं। अभी तक कपड़े सीधे घोड़े होते हैं नमाज के अंदर, वो हाथ उठाकर पहले पीछे हाथ दे जाएंगे, फिर उसके बाद हाथ बांधेंगे। ये किधर सीखा? वो मोहल्ले में एक बंदा ऐसे ही पढ़ता था, हमने भी ऐसे सीख लिया। मेरा सवाल है आप सबसे, सबसे पहला फर्ज नमाज है, किधर सीखा? कौन सी जगह पर इसका कोर्स किया आपने? आप कहेंगे यार नमाज का भी कोर्स होता है। अच्छा जनाब, तुम्हारी टाइपिंग सीखनी है तो उसका कोर्स है, स्कूटर सीखनी है तो वो भी किसी को साथ बिठाकर उसके गियर समझे थे, उसका क्लच समझा था, गाड़ी के लिए किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, दुनिया की सारी चीजें सीखी, नमाज सिर्फ देख के पढ़ना शुरू कर दी।
कभी सोचा कि नमाज में कितनी बारीकियां हैं? और अगर नमाज ही दुरुस्त नहीं तो आगे क्या होगा? ये इल्म की कमी है। मैं आपको सही बताऊं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज नमाज पढ़ रहे हैं, सर्दी में भी पढ़ रहे हैं, गर्मी में भी पढ़ रहे हैं, नमाज छोड़ते ही नहीं है, मगर नमाज ऐसी पढ़ रहे हैं कि नमाज ही उनके मुंह पे मार दी जाएगी। अहदीस में सबसे बदतरीन चोर वो है जो नमाज का चोर है। हुजूर नमाज में चोरी कैसे हो सकती है? फरमाया जो रुकू और सजदे सही नहीं करता है, जल्दी जल्दी रुकू, ऐसे कव्वे की ठोक मारने वाला कहा गया अहदीस में। कुछ लोग सजदा ऐसे करते हैं, सजदे से खड़े फिर सजदे में, फिर सजदे में, ऐसा लग रहा है को कव्वा ठोक मार रहा है, क्योंकि सीखी नहीं है ना, शौक है मगर बगैर इल्म के। सोचो, तस्बीह फिरी पर दिल न फिर की लेना, तस्बीह पढ़ के हो इल्म पढ़िया पर अदब न सीखिया की लेना। इल्म नु पढ़ के हो, इल्म सीखें, फिर उस पर अमल करें, फिर अदब करें, फिर देखें क्या मिलता है। इधर तो इल्म सीखने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को। इस दौर में नमाज कोर्स शुरू करा दिया। लोगों ने बातें की, यार नमाज का भी कोई कोर्स होता है। वल्लाही 50-50, 60-60 साल के लोगों ने जब कोर्स किया, 25 साल से नमाज पढ़ते थे, उनकी जबान से जुमले आए कि आज पता चला नमाज कैसे पढ़नी है, आज पता चला वुजू कैसे होता है, आज पता चला सजदा किन हड्डियों पे होता है। हम तो पेशानी ही नहीं लगाते थे, हमारी तो उंगलियां सजदे में उठ जाती थी, हमें तो अंदाजा ही नहीं था तादील अरकान क्या है। अरे ये 5-7 दिन में तुम वो चीज सीख सकते हो जो तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी, मगर नमाज सीखने का टाइम नहीं है, चाय के होटल पर घंटों बैठने का टाइम है। ये हमारी जो इल्म दीन से दूरी और बेरगबत ये हलाक कर देगी। अरे दरसे निजामी तो दूर की बात है, नमाज तो सीख लो, वुजू तो सीख लो। एक बालिग मर्द और औरत के लिए पाक होना जरूरी है, और जिस घर में नापाक शख्स हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। मैं सवाल करता हूं, जवाब मत देना, अपने आप से पूछो कितने लोग यहां पर हैं जिनको गुस्ल के तीनों फराइज पता है? अच्छा, गुस्ल के भी फर्ज होते हैं? हमने तो सोचा था जोहर के फर्ज होते हैं, असर के फर्ज होते हैं, गुस्ल के फर्ज किधर से आ गए हैं? हालांकि बालिग हो चुका है, उसको पता ही नहीं है कि अगर ये सही तरीके से फर्ज गुस्ल की अदा नहीं करेगा तो पाक नहीं होगा। और आपको पता है ये वही वाली बात, समझियो मेरी बात, इल्म के बगैर इबादत जो है ना वो गुनाह बन जाती है। हाँ, इबादत भी गुनाह बन जाती है। कैसे? ये तो आपको पता होगा ना कि नापाकी की हालत में मस्जिद में आना हराम, ठीक है, नापाकी की हालत में कुरान को हाथ लगाना हराम। अब जो गुस्ल ही ठीक नहीं करता आ रहा है नमाज पढ़ने, लोग क्या समझ रहे हैं? नमाज पढ़ रहा है, मिल क्या रहा है? हराम, गुनाह। कुरान पढ़ रहा है, सुभान अल्लाह, लोग कह रहे हैं तिलावत कर रहा है नापाक, क्योंकि गुस्ल के फराइज अदा नहीं किए। कुरान पढ़ना हराम, इबादत हराम बन गई, इबादत गुनाह बन गई है। अगर मैं किसी से पूछूं जनाब गुस्ल कैसे करते हो, तो कहा हजरत मैं तो आधा घंटा नहाता हूं, सारे साबुन सारी क्रीमें मैंने रखी हुई हैं, और अगर कुल्ली नहीं करोगे, नाक में पानी नहीं चढ़ाओगे, जो तरीका बताया गया गुस्ल का, रोजा ना हो तो गरगरा भी करना चाहिए, तो आपने पाक नहीं होना। चाहे आप टैंकर के टैंकर पे नहा लो। अब कितने लोग हैं जो गुस्ल के ये फराइज पूरे करते हैं? 3 फर्ज है, चलो आज बता भी देता हूं, कुछ तो लेके जाओ। गुस्ल के कितने फर्ज हैं? पहला कुल्ली करना। आप कहें नापाक हुआ हुआ कुल्ली करना, जो शरीयत का हुक्म है। हाँ, पहले नापाकी वाली जगह को साफ कर लें, उसके बाद कुल्ली करें, रोजा नहीं तो गरगरा करें। दूसरा फर्ज है नाक में पानी चढ़ाना। क्या है दूसरा फर्ज? अच्छा, नरम हड्डी तक चढ़ाना है, सिर्फ नाक पे रख नहीं लेना, थोड़ा सा खींचेंगे नाक में, नाक को साफ भी कर लें और नाक में पानी चढ़ाएंगे। और तीसरा फर्ज है पूरे जिस्म पर पानी बहाना, हर पार्ट ऑफ द बॉडी पे 2-2 कतरे पानी बह जाना जरूरी है, हर उज़्व, हर बाल पर। अब इसमें भी इशारा कर दूंगा, समझदार लोग समझ जाएंगे कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी जगह हैं जहां जब तक हम पानी नहीं पहुंचाएंगे नहीं पहुंचेगा पानी। हम शावर के नीचे खड़े हो गए, आधा घंटा खड़े हो गए, पानी नहीं पहुंचा वहां पर जहां पहुंचाना था, क्योंकि हर हिस्से पर पहुंचाना है। कई जगहों पर आपको खुद पानी पहुंचाना होगा, और अगर ना पहुंचाया और कोई एक बाल भी सूखा रह गया, 1 इंच जगह भी सूखी रह गई, आपका गुस्ल ही नहीं हुआ। गुस्ल नहीं हुआ तो पाक ही नहीं हुए, पाक नहीं हुए तो इबादत ही नहीं होगी। सोचो, ये बेइल्म की इबादत मरवा देगी, ये इल्म से दूरी तबाह कर सकती है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक बार हमारे इस्लाम में मक्का पाक में, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन जहां भी होते हैं, दीन की बात कर रहे होते हैं, मसाइल सिखा रहे होते हैं, नमाज वुजू गुस्ल की बात हो रही होती है। हरम पाक में हमारे इस्लामी भाई ने कुछ इस्लामी भाइयों को जमा करके कुछ गुस्ल के मसाइल बताए, जैसे मैंने भी आपको फराइज बताया। पता है, एक शख्स एहराम की हालत में रोने लग गया, एहराम में था, और कहता है जिंदगी में पहली बार सुना है गुस्ल कैसे होता है, मैंने तो आज तक एक बार भी ऐसे गुस्ल नहीं किया। वो खड़ा किधर था? हरम पाक में। किस हालत में था? एहराम में। हमारे इस्लाम ने पता क्या किया? उसका हाथ पकड़ा, उसको हरम से बाहर ले आया। इसकी वजह क्या है? सोचो, क्योंकि हरम की एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है, और हुदूद हरम में एक गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर है। अगर कोई शख्स हरम शरीफ में बेगुस्ला मौजूद है, हर लम्हे 1 लाख गुनाह कमा रहा है।
तवाफ कर रहा है, वो समझ रहा है मैं सवाब कमा रहा हूं, हर कदम पे गुनाह कमा रहा है। अरे लाखों रुपए खर्च करके गुनाह कमा रहा है, क्यों? दिस इज द डिफरेंस। यही बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि इल्म के बगैर इबादत ये बाज औकात बड़ी बर्बादी हो जाती है। रिवायतों में मज़मून मिलता है, कुछ कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि वो कुरान पढ़ते हैं मगर कुरान उन्हीं पर लानत करता है। तो कुरान पढ़ें, कौन मना करता है, मगर सीखे ना, उसके मखारिज सीखे, उसका तरीका सीखे। नमाज जरूर पढ़े, फर्ज है, मगर नमाज के मसाइल सीखो। दुनिया भर की जनाब टेक्नोलॉजी सीख ली, हर आने वाला सॉफ्टवेयर सीख लिया, नमाज नहीं सीखी, तिलावत नहीं सीखा। मैं तो आपको बेसिक इल्म दीन की बातें कर रहा हूं, पाक होना तो सीख लो। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी हमें सिखा रही है, पकड़ पकड़ के सिखा रही है, बगैर किसी पैसों के सिखा रही है। नमाज सिखाने के 50,000 रुपए होते ना तो भी हमें अपनी कोई चीज बेच के सीखनी चाहिए थी, मगर इधर तो कहते हैं आ जाओ 7 दिन के लिए पैसे, खाना भी हम खिलाएंगे, खुदा के वास्ते सीख लो, मगर टाइम नहीं है। मदनी काफिले में आ जाओ, वहां कुछ सिखा देंगे, मदनी काफिले में जाने का टाइम नहीं है। दरसे निजामी तो बहुत कमाल की बात है, मगर जो बेसिक उलूम है वो तो सीखें। और आज हमने उलमा के फजाइल सुने, तलबा के फजाइल सुने। घर में एक मीटिंग होती है, खानदान वाले बैठ के बात करते हैं, यार खानदान में एक डॉक्टर होना चाहिए, यार एक वकील होना चाहिए फैमिली में। सच्ची बात यह है कि आलिम दीन होना चाहिए, एक हाफिज कुरान घर में होना चाहिए। कयामत के दिन अगर हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं, मेरा बेटा अगर आलिम में बाअमल होगा तो हाथ पकड़ के वालिद को जन्नत में ले जाएगा। फिक्र करो अपनी आखिरत की, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली में, अपनी बच्चियों में। कमाल देखो दावत इस्लामी का, बच्चों के लिए जामियतुल मदीना अलग बना दिए, बच्चियों के लिए अलग बना दिए। अरे माशाल्लाह हजारों बच्चियां आलिमा बन रही हैं। अपनी बच्ची को, अपने बच्चों की वालदा को, अपनी बहन को आगे बढ़ाओ कि ये आलिम बन गई, कल इंशाल्लाह इसके यहाँ बच्चे होंगे। अरे माँ ही आलिमा होगी तो पूरी नस्लों की तकदीर बदल जाएगी। सबसे पहली दर्स का माँ होती है। कमाल है दावत इस्लामी ने जो ये कर दिखाया। 70,000 से ज्यादा स्टूडेंट आज पूरी दुनिया में पढ़ रहे हैं और बगैर किसी फीस के पढ़ रहे हैं। इनका खाना पीना रहना अकोमोडेशन हजारों बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने की हुई है। तो है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, दो तरफों मैंने बात की है। एक तो वो बेसिक उलूम है, जरूरी उलूम है जो हम सब ने सीखने हैं, उसका इंतजाम दावत इस्लामी में मौजूद है। नमाज कोर्स मौजूद है, अब तो फैजान फर्ज उलूम कोर्स भी माशाल्लाह ऑनलाइन कराया जाता है। मदनी काफिलों में आए तो आपको सीखने को मिल जाएगा। रोजाना रात को इशा के बाद मदरसतुल मदीना बालिगान दुनिया भर में लगते हैं, वहां जाए तो कुरान की तिलावत आपकी दुरुस्त होना शुरू हो जाएगी, मखारिज ठीक होना शुरू हो जाएंगे और शौक मजीद बढ़ जाए तो जामियतुल मदीना के दरवाजे खुले हैं, आइए आलिम बन जाएं। अच्छा, इसमें भी शैतान कहता है यार अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब तो 50 साल का हो गया, अब कौन दाखिला देगा, अब मैं कैसे आलिम बन सकता हूं। सीखने की कोई उम्र एंड नहीं होती है। इंसान महद से लेकर लहद तक सीखता है, मां की गोद से लेकर कब्र तक चाहे तो सीख सकता है अगर सीखना चाहे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है कि यूके के अंदर एक हमारे इस्लामी भाई गैर मुस्लिम थे, मुसलमान हुए और 65 साल की उम्र में उन्होंने दरस निजामी शुरू किया और 72 साल की उम्र में दरस निजामी से फारिग भी हो गए। तो जज्बा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता मिल जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।